the viewers of this YouTube channel, Quantum Physics Classes. I stand before you to discuss Gauss's theorem and its application in this class, which is part 10 of chapter 1, electric charges and electric field in electrostatics. This topic will be continuing in next part also. Before dealing with Gauss's theorem and its application, one topic should be solid angle. It is defined as the angle formed by the surface area of a closed surface area by the closed surface area of a sphere or a spherical surface or a spherical surface at the center, at its center, that is center of the sphere. Its symbol is d omega or omega. D omega for a small for solid angle formed at the center of a solid sphere by its a small surface area, and while omega stands for total solid angle formed at the center of a sphere by its entire surface. तो सॉलिड एंगल जो है वह वैसा एंगल है जो कि वह एंगल है जो कि सॉलिड स्फीयर के किसी एरिया के द्वारा सॉलिड सरफेस के किसी एरिया के द्वारा या सॉलिड स्फीयर के किसी एरिया के द्वारा उसके स्फीयर या कोई स्फेरिकल सरफेस के किसी एरिया के द्वारा उसके सेंटर पर बनता है। तो उस एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं, जिसको हिंदी में ठोस कोण कहा जाता है, और इसका सिंबल जो होता है डी ओमेगा और ओमेगा होता है। तो सॉलिड एंगल जो है किसी क्लोज सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर और ए स्फेरिकल सरफेस के द्वारा उसके सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होता है उसी को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। सपोज इट्स फॉर्मूला d omega is equal to area upon ds. Small area, ds is the small area of a sphere
and r is the radius of the sphere. Since angle is equal to arc by arc upon radius होता है, एंगल प्लेन एंगल जो होता है सर्कुलर पार्ट के द्वारा जो बनता है सर्किल के सेंटर पर आर्क बाई रेडियस होता है, तो उसमें तो लेंथ है, और ये चूँकि सॉलिड एंगल एरिया से रिलेटेड है इसलिए सॉलिड एंगल हो जाएगा स्मॉल एरिया, और रेडियस एरिया का ही टर्म होना चाहिए, तो रेडियस स्क्वायर करेंगे तो एरिया के उसमें एरिया का डायमेंशन हो जाएगा. सो एरिया अपॉन एरिया इट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस. Angle is dimensionless, solid angle is also dimensionless. And this can also be written as ds cos theta upon r square. ds is a small area of a spherical surface or a solid or a sphere, where ds is an elemental area of a sphere. R is the radius of the sphere. Radius of the sphere. R is the radius of the sphere. ds cos theta is the projection of the small area ds on the surface drawn by taking from the center of the sphere, taking r as a radius. r को रेडियस ले करके और स्फेयर को सेंटर मान करके एक स्फेयर खींचेंगे, तो उस स्फेयर पर जो ds एरिया जो ds होगा उसका स्मॉल एरिया एलिमेंटल एरिया ds का जो प्रोजेक्शन होगा वो ds cos थीटा है. तो हम फिगर में देखेंगे डायग्राम में कि जितना एंगल स्मॉल एरिया ds के द्वारा उसके सेंटर पर बनेगा उतना ही उसके प्रोजेक्शन के द्वारा ds का जो प्रोजेक्शन है स्फेयर पर उसके द्वारा भी उसके सेंटर पर उतना ही बनेगा. इसलिए सॉलिड एंगल इन बोथ केसेस भी सेम, d ओमेगा इज इक्वल टू ds स्मॉल एरिया अपॉन radius square is equal to projection of a small area on the surface of the sphere drawn by taking the center of the sphere, taking center and of radius capital R. This is the small area. This is a small area ds of a sphere. This is a small area, and let P be the point lies on its center, and let O be the point O be the point at distance r, where angle formed by this area element ds is d omega. यहाँ जो एंगल फॉर्म हुआ है देखिए, यहाँ दिस डिस्टेंस इज r, ये जो एंगल यहाँ फॉर्म हुआ डी ओमेगा विच इज द सॉलिड एंगल formed by this a small elemental area by an elemental area of the sphere at distance r. Now taking O as center, drawn a spherical surface through point P. Now a spherical surface is drawn. A spherical surface is drawn from point P, through point P, taking O as center of radius r. Now the projection of ds is on this spherical surface is, now this is the projection.
This is the projection shown by the dotted line on this spherical surface. By taking by drawing a spherical surface through point P, taking O as center. यह स्मॉल एरिया ds है किसी स्फेरिकल स्फीयर का या स्फेरिकल सरफेस का, उसके द्वारा ऊपर जो है r डिस्टेंस पर एक पॉइंट O है, वहाँ जो एंगल फॉर्म हुआ है इस ds के द्वारा, स्मॉल एरिया ds के द्वारा, वो d ओमेगा है। अब इस स्मॉल एरिया ds के सेंटर को पॉइंट मान करके एज्यूम करके एक स्फेरिकल सरफेस हम ड्रॉ करते हैं। तो इसका जो है यहाँ पर इस स्फेरिकल सरफेस जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट है, उस पर उसका जो है एक पार्ट लिया गया प्रोजेक्ट ds cos थीटा, उसका एक एरिया लिया गया, यहाँ पर इसका एक पार्ट लिया गया, इस सरफेस पर एक प्रोजेक्शन लिया गया ds का, और यहाँ ds का जो है r डायरेक्शन OP लाइन को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसके अलोंग इसको प्रोड्यूस कर देते हैं। इधर एक यूनिट वेक्टर n कैप ले लीजिए, इधर एक यूनिट वेक्टर n कैप दर्शाया शो किया गया है, और P पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए हैं, इधर इस एरिया पर नॉर्मल ड्रॉ किए हैं। हम बताए थे पिछले क्लास में, एरिया पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो एरिया वेक्टर हो जाएगा। ये हो गया आपका एरिया वेक्टर ds वेक्टर, जो कि जो O से P को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है जिसका डिस्टेंस r है, उसके लॉन्ग है यूनिट वेक्टर, उस डायरेक्शन को आउटवर्ड डायरेक्शन में शो करने वाला जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, वह n कैप लिया गया है, जो कि जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया है इस एरिया पर। Pn इज द नॉर्मल, कैपिटल N Pn इज द नॉर्मल ड्रॉन on the small area ds. It makes angle theta to the direction of n cap. Pn जो है नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, वह जो है OP को आगे ज्वाइन करने वाला लाइन से जो है, लाइन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर n कैप है, उससे थीटा एंगल बनाता है। इसलिए ds का जो प्रोजेक्शन होगा, ये डॉटेड लाइन से जो एरिया यहाँ पर दिखाया गया है थोड़ा तिरछा, इसको हम ds cos थीटा, ये ds cos थीटा है। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ स्मॉल एरिया, एलिमेंटल एरिया या छोटा एरिया जो है ds है पूरे स्फीयर का, उसका ds का ये प्रोजेक्शन हो गया, जिसको डॉटेड सर्किल से हम दिखाए हैं। डॉटेड माने डॉटेड सर्किल से यहाँ दिखाया गया है, छोटा सर्किल से इसको दिखाया गया है। तो ये ds का प्रोजेक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ ये जो नॉर्मल ड्रॉ हुआ है, किया गया है P पॉइंट से एरिया पर, ये एरिया वेक्टर हो गया, स्मॉल एरिया वेक्टर ds वेक्टर हो गया, वह OP डायरेक्शन के OP लाइन के प्रोड्यूस जो यूनिट वेक्टर है उसके लॉन्ग, उससे थीटा एंगल बनाता है, इसलिए फॉर्म करता है। इसलिए ds का जो प्रोजेक्शन होगा इधर जो है, इस जो कर्व सरफेस हम खींचे, एक कर्व सरफेस खींचे है P पॉइंट से होकर के, तो उस कर्व सरफेस पर ds का जो प्रोजेक्शन होगा थीटा एंगल के कारण ds cos थीटा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो स्मॉल एरिया ds है स्फीयर का, उसके द्वारा भी यहाँ ऊपर जो एंगल फॉर्म हुआ है r डिस्टेंस पर पॉइंट O है, वहाँ एंगल d ओमेगा है, और ds cos थीटा के कारण भी जो एंगल फॉर्म हुआ है वह भी d ओमेगा है। सो I have already written d omega solid angle is equal to a small area by r square, क्योंकि इसके इस स्मॉल एरिया ds से भी उतना ही कोण बना है यहाँ, जितना कि इसका स्मॉल एरिया ds का स्फेरिकल सरफेस पर प्रोजेक्शन है, उससे भी उतना ही एरिया, उतना ही एंगल फॉर्म हुआ है। इसलिए इन दैट सिचुएशन d omega is equal to ds upon r square is equal to ds cos theta upon r square. This is the solid angle. D omega is the solid angle formed by the surface ds. So it is defined as the angle formed by the closed surface area of a surface, closed surface area ds of a surface at the center of the spherical surface or a sphere. This is the solid angle, and its symbol is d omega for a small area, and total surface के द्वारा जो solid angle होगा वो ओमेगा है। तो total solid angle जो होगा तो हो जाएगा total solid angle formed at the center, formed at the center of a sphere is omega is equal to sigma over d omega
ये तो सरफेस का एक स्मॉल एरिया है, ऐसा ऐसा एरिया बहुत सारा होगा, तो सबके कारण उसको समेशन कर देते हैं, समअप कर देते हैं अपॉन r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, दिस डिस्टेंस, और सिग्मा डी ओमेगा सिग्मा डी एस, और सिग्मा डी एस स्फीयर का जो एरिया होता है टोटल एरिया 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर इज कैंसिल आउट, दिस इज 4 पाई. The total solid angle formed by any closed surface, either a sphere or any closed surface, is 4 pi. While total angle formed by any curve at the center is 2 pi. Circle और curve at the center is 2 pi. While total solid angle formed at the center of a sphere or any spherical surface is 4 pi. Total solid angle. Now we will discuss Gauss's theorem, and this topic solid angle will be used. The formula of this solid angle ds cos theta by r square is equal to d omega, it will be used in the Gauss theorem, और इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना जानना जरूरी था, जो हमने किया. Now I am going to discuss Gauss's theorem. Now Gauss's theorem. A German scientist Gauss deduced an expression for total electric flux through a closed surface, which gives the relation between electric flux and charge enclosed inside a closed surface. And this theorem states that the statement of this theorem, it states that the total electric flux means लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो. किसी सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस अगर हेल्ड है तो उसके नॉर्मल डायरेक्शन में, उस सरफेस के प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है, पास करता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, जो हमने पिछले क्लास में उसको बतला दिया था. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निगेटिव तब होगा जब किसी सरफेस से होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रहा है, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निगेटिव कहा जाता है, इसलिए कि उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर जो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएगा. एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल होता है, तो लेफ्ट फेस पर जो एरिया वेक्टर होगा वह उसके नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो एरिया वेक्टर लेफ्ट सरफेस के लिए निगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के बीच का एंगल जो होगा वह 180 हो जाएगा. तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर कर रहा है जिस सरफेस पर, तो उस सरफेस के लिए इनकमिंग फ्लक्स के लिए इनकमिंग फील्ड लाइंस के लिए किसी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निगेटिव लिया जाता है, एंड दूसरे सरफेस राइट सरफेस के लिए, राइट फेस के लिए, जहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बाहर निकल रहा है, इमर्ज कर रहा है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और उस जगह पर सरफेस के, उस क्लोज सरफेस के उस जगह पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में होगा. द डायरेक्शन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर at the right portion of the right part of the closed surface, both are same, so angle between E vector and ds vector will be 0 degree. So the electric field lines emerging out of a surface is taken as positive, while incoming field lines, that is entering at a point or at a part of a closed surface, is incoming field lines entering at the surface are taken as negative. तो फील्ड लाइन क्लियर है, कॉन्सेप्ट मेरे समझ से पिछले टॉपिक में बता चुके थे. तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू
इसको फाई संकेत सिंबल से डिनोट करते हैं फ्लक्स को। थ्रो ए क्लोज सरफेस, कोई बंद तल है, सरफेस है, बंद सतह है, उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास करेगा। क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स the charge enclosed, say Q, say a point charge Q is enclosed inside the closed surface. Charge enclosed inside it मतलब क्लोज सरफेस, that is electric flux phi is equal to 1/ε0 times into the charge that enclosed inside the closed surface. Q is the charge, that is Q upon ε0. This is the Gauss's theorem, and it can be also generalized for a number of charges which are enclosed inside the closed surface. That is, we can generalize it for that case, or phi is equal to sigma over Q upon ε0, where sigma Q is the total charge Q1, Q2, Q3, Q4. If there are so many charges present inside the closed surface, then we can take sigma over all charges instead of a single point charge Q. This charge Q is a single point charge kept inside the closed surface. But if there are so many charges present inside the closed surface, then we will sum up over all the charges which are kept inside the क्लोज सरफेस। एक पॉइंट चार्ज है, इंक्लोज है सरफेस में, तब तो क्यू लेंगे, क्यू का 1/ε0 टाइम्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्लोज सरफेस से पास करेगा। और अगर बहुत सारे चार्जेज प्रेजेंट है तो उसके लिए भी गॉस थ्योरम अप्लाई होगा, नॉट फॉर ए सिंगल चार्ज बट फॉर ए मेनी चार्जेज वी कैन अप्लाई गॉस थ्योरम ऑल्सो। गॉस थ्योरम को अनेक चार्ज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में सिग्मा ओवर क्यू अपॉन ε0, वेयर व्हाट इज ε0? ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, कुछ वैल्यू is already you already know the value of ε0, 8.8085 multiplied by 10 to the power minus 12 coulomb square per Newton meter square, where ε0 is permittivity of free space or vacuum, permittivity of free space or vacuum, free space or vacuum is equal to 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square per Newton meter square. This is the value of ε0, and this is the mathematical form of Gauss's theorem. Now proof of the Gauss's theorem, and before doing it, if an electric dipole is placed inside a closed surface, then sigma q, इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, दूसरा पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, तो टोटल चार्ज उसका जीरो हो जाएगा। डाइपोल का जो टोटल चार्ज होगा वह जीरो हो जाएगा। इसलिए टोटल फ्लक्स जो होगा, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो टोटल फ्लक्स जो होगा, डाइपोल अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर में है तो टोटल फ्लक्स जो होगा, वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस से वह जीरो हो जाएगा। तो टोटल सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होने का ये मतलब नहीं है कि क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। टेक्स्ट प्रॉब्लम में एक है दिया हुआ कि अगर कोई चार्ज, अगर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। इफ देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस, इफ द इमर्जिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज जीरो, इट इज नॉट सो। चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस बट नेट चार्ज इज जीरो।
in the case of a dipole, in the case of an electric dipole, the net charge, if an electric dipole is kept inside a closed surface, the net charge of the electric dipole is 0, so electric flux through the closed surface is also 0. तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर जो है डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशन, इवन CBSE ये पूछता है, इस साल भी पूछा था CBSE एग्जाम में, ये ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में. नाउ प्रूफ ऑफ द गॉसेस थ्योरम. तो प्रूफ के लिए क्लोज सरफेस लेते हैं. सपोज ये क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस S, closed surface S consisting of a point charge plus Q at point O. Let a small area ds by which a solid angle d omega is formed at point O. सॉलिड एंगल यहां यूज आ गया सॉलिड एंगल का. ये एरिया ds है जो कि स्फीयर का क्लोज सरफेस का एक पार्ट है, स्मॉल एलिमेंटल एरिया है. और इस एरिया के द्वारा जो एंगल फॉर्म हुआ है इस पॉइंट चार्ज प्लस के ऊपर वो डी ओमेगा है. दिस इज द एंगल डी ओमेगा फॉर्म्ड एट पॉइंट ओ वेयर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज सिचुएटेड. इस स्मॉल एरिया ds का पूरे क्लोज सरफेसेस का के अंदर एक चार्ज है ओ पॉइंट पर प्लस क्यू, और इस पूरे क्लोज सरफेस का एक एरिया ds लिए हैं, उसके द्वारा जो एंगल फॉर्म हुआ है यहाँ पर ओ पॉइंट पर जहाँ चार्ज प्लस क्यू सिचुएटेड है वह एंगल डी ओमेगा है. क्योंकि हमने हम बताया था अभी हमने कुछ देर पहले कि एक स्फीयर या स्फेरिकल सरफेस के किसी पार्ट के द्वारा, किसी एलिमेंटल एरिया के द्वारा उसके अंदर किसी बिंदु पर जो कोण फॉर्म होता है, किसी पॉइंट पर जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं. तो डी ओमेगा इज द सॉलिड एंगल formed by the closed surface by the elemental area ds of the closed surface. इस क्लोज सरफेस के स्मॉल एरिया के द्वारा एंगल डी ओमेगा है फॉर्म हुआ है P पर. अब यहाँ से स्मॉल एरिया पर कोई पॉइंट P ले लेते हैं. यहाँ P, a point P is taken on the small area ds whose distance from point charge plus q is r. ये डिस्टेंस r है. अब यहाँ जो है इसको P पर से इसको आगे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वह सरफेस के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट पर या किसी सरफेस पर जो डायरेक्शन होता है वह सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, बाहर की तरफ होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड नॉर्मल. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन. और इस पर आप जानते हैं कि एरिया पर नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उस डायरेक्शन में एरिया जो वेक्टर होगा उसको हम एक वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. स्मॉल एरिया पर अगर नॉर्मल ड्रॉन किया जाए, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाए तो उसको हम एरिया वेक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसका एरिया उस एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा और डायरेक्शन जो होगा उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो हम पहले बता चुके हैं. तो ये जो है यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉन कर दीजिए Pn, और इधर एरिया वेक्टर हो जाएगा. ds पर जो नॉर्मल ड्रॉन करेंगे एरिया वेक्टर हो जाएगा. ये एंगल थीटा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर कंपोनेंट जो होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में वह ई कॉस थीटा हो जाएगा. अब आप फ्लक्स जानते हैं, फ्लक्स का डिफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला. अब नॉर्मल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लो पास करेगा इस क्लोज सरफेस से स्मॉल एरिया ds से, वो हम निकाल लेंगे. वो हो जाएगा डिफिनेशन से ई कॉस थीटा, क्योंकि इधर जो है Pn के लॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा होगा इंटू स्मॉल एरिया ds. तो ई कॉस थीटा इंटू ds विद द फ्लक्स that flux through the small area ds, elemental area ds of the spherical surface. तो फ्लक्स हो जाएगा ds से, जो फ्लक्स होगा उसको हम निकाल लेंगे d phi इक्वल टू, ये फिगर 1 हो गया, तो स्केच कर लीजिए. तो let q be a point charge lies inside a closed surface S, a closed surface
क्लोज सरफेस एस, जिसको हमने फिगर 1 में शो किया है, रिप्रेजेंट किया है। लेट P be a point, P be a point on lies on the elemental area, that is a small area, on the elemental area ds of the closed surfaces, closed surface S, और डिस्टेंस जो इस पॉइंट P का है, पॉइंट चार्ज जो Q से, वो कितना है? R है। एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम प्लस Q, पॉइंट चार्ज प्लस Q, which is situated at O. Now the flux, electric field is directed outward. ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस के नॉर्मल आउटवर्ड। तो फ्लक्स का फॉर्मूला से जो है फ्लक्स निकालना। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एलिमेंटल एरिया ds, एलिमेंटल एरिया जो कि स्मॉल एरिया है पूरे क्लोज सरफेस का, एरिया ds along Pn, along normal direction, along the outward normal Pn, जो एरिया वेक्टर स्मॉल एरिया पर नॉर्मल ड्रॉन किया है तो एरिया वेक्टर ds वेक्टर हो जाएगा। दिस इज ds वेक्टर along Pn is d phi the electric flux due to the small area ds, d phi equals to E cos theta, component of electric field intensity along normal Pn, that is along area vector is E cos theta. So definition of electric flux is E cos theta multiplied by area ds, that is E ds cos theta. And now we can obtain the value of electric field intensity using Coulomb's law, that is electric field intensity at point P at distance r from point charge O is 1/4 pi epsilon 0 Q upon r square। पॉइंट चार्ज Q से r डिस्टेंस पर जो कोई पॉइंट P होता है वहाँ फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 1/4 pi epsilon naught Q upon r square। तो we can write in place of P, we can write 1/4 pi epsilon naught into Q upon r square into ds into cos theta. This is the flux, electric flux through a small area ds, or ds d phi is equal to, now we can write it 1/4 pi epsilon 0 into Q into ds cos theta upon r square। यहाँ ds cos theta upon r square आ गया टर्म में। गॉस थ्योरम में स्टार्ट करने के पहले हमने बताया था सॉलिड एंगल, इसीलिए सॉलिड एंगल पहले हमने बतलाया। इस सॉलिड एंगल का फॉर्मूला से ds cos theta upon r square is the solid angle formed by this elemental area at point O, that is where charge plus Q is situated। इस स्मॉल एरिया के द्वारा O पर जो पॉइंट चार्ज Q है, O पर जो बना सॉलिड एंगल है, ये d ओमेगा है। यहाँ देखिए हमने d ओमेगा दिखाया है। तो ये फॉर्मूला से ds cos theta upon r square is d ओमेगा। तो इसके जगह पर हम d ओमेगा रखे थे, लिख देंगे सीधे, क्योंकि शुरुआत में ही उस फॉर्मूला को हम बता चुके हैं। ठीक है। नाउ d phi is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q एंड ds cos theta upon r square, अभी हमने बतलाया उसको, जो है उस फॉर्मूला है सॉलिड एंगल का, शुरू में ही बता चुके हैं, इंटू d ओमेगा। ds cos theta upon r square, ये सॉलिड एंगल हो गया फाउंड बाय द स्मॉल एरिया ds।
solid angle formed by the elemental area ds by ds. Elemental area ds is solid angle at point O. Point O where charge q is situated. This is equation first. Second. Therefore, total solid angle, total electric total electric flux for the closed surface. Phi equal to equation 1 or 2. One is given in formula earlier. Phi equals to integral t phi. Total electric flux passing through the closed surface. ये स्मॉल एरिया ds से जो फ्लक्स हुआ, ये ds के द्वारा जो फ्लक्स हो गया, ds से होकर जो नॉर्मल डायरेक्शन में, जो pn डायरेक्शन में जो फ्लक्स पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास किया, वो d फाई ये हो गया. ये टोटल क्लोज सरफेस है, तो इस पर जो है सम अप करेंगे हम d फाई पर. दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q इंटू d ओमेगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट इंटू q भी कांस्टेंट है चार्ज इंटीग्रल डी ओमेगा. और यहाँ पर फिर यूज हो गया सम ऑफ टोटल सॉलिड एंगल बाय ए क्लोज सम ऑफ टोटल सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर और ए क्लोज सरफेस इज 4 पाई. So we can write it sigma over d omega is equal to 4 pi q into 4 pi. 4 pi and 4 pi will cancel out. Therefore, pi is equal to q upon epsilon naught, which is the Gauss's theorem. That is, Gauss's theorem is proved. अब what is the importance of Gauss's theorem? कूलॉम्स लॉ से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं वह केवल पॉइंट चार्ज, डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज के लिए कारण होता है, जो अलग अलग पॉइंट चार्ज है कुछ सेपरेशन पर. लेकिन अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि चार्ज होलो स्फीयर के कारण निकालना है, या चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण निकालना है, या लाइन चार्ज के कारण निकालना है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें कूलॉम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते. वहाँ पर जो है गॉसेस थ्योरम के अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गॉसेस थ्योरम. That Gauss's theorem can be used to find electric field intensity due to a continuous charge distribution, whereas Coulomb's law is only used to calculate electric field intensity at a point due to a point charge or a system of charges, but discrete distribution. वहाँ जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह कंटिन्यूअस नहीं होता है. For a discrete charge, Coulomb's law is used to calculate electric field intensity for a discrete charge, whereas Gauss's theorem is used to calculate electric field intensity due to continuous charge distribution. मतलब गॉसेस थ्योरम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, डिराइव करने के लिए यूज होता है, जबकि कूलॉम्स लॉ केवल जो है डिस्क्रीट चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दिस इज द सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ गॉसेस थ्योरम. नाउ ए इंपॉर्टेंट डिडक्शन फ्रॉम गॉसेस थ्योरम बिफोर कंसिडरिंग इट्स applications. An important deduction from Gauss's theorem is Coulomb's law, which can be obtained easily using Gauss's theorem, which we will discuss later. Now we have to deduce Coulomb's law using Gauss's law, Gauss's theorem. It is also an application of Gauss's law, but not applied to a continuous charge distribution. And the applications of other applications of Gauss's law for different charge distribution will be done in next part. Suppose to deduce Coulomb's law from Gauss's law, suppose 2 point charges Q1 and Q2. Q1 is the point charge and Q2 is the test charge at distance r. And by using, suppose 2 point charges Q1 plus Q1 and plus Q2 are separated by
by distance r in free space or vacuum. टेकिंग Q1, इसको पॉइंट चार्ज का ज्यूम करते हैं प्लस Q1 को, जिसके कारण फील्ड है, इसके कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दूसरा चार्ज Q2 जो कि r डिस्टेंस पर है, और उसको हम कूलम उसको जो है उसको हम निकाल सकते हैं, और जो है उस फोर्स को हम निकालेंगे, लेकिन उसके पहले जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि कूलम लॉ तो हमको प्राप्त ही करना है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसेस थ्योरम का यूज करके. सपोज drawn a sphere of radius r through point P, taking point charge plus Q1 as its center of the sphere. पॉइंट चार्ज को हम, अब ये गॉसियन सरफेस हो गया. ये गॉसियन सरफेस इज द सरफेस, इमेजिनरी सरफेस, which can enclose a charge and at every point of which the direction of the value magnitude of electric field is same. That surface is called Gaussian surface. Gaussian surface can be used in other applications of Gauss's theorem also. We will do that in the next part of this class. Using Gauss's theorem, Gauss's law, total electric flux phi E is equal to integral over closed surface, entire closed surface. Integral, एक circle is given. This indicates integration over entire closed surface. That is surface integral. E dot ds, E vector dot ds vector, but direction of E vector and ds vector. If we take a ds a small area, then we draw a normal over ds. Then direction of ds vector will also be in the direction of force. तो F E वेक्टर का डायरेक्शन और ds वेक्टर, जो F का डायरेक्शन होगा फोर्स का, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. और एरिया वेक्टर यहाँ पर स्मॉल एरिया ले लेंगे इस गॉसियन सरफेस का, इस स्फीयर का, इमेजिनरी स्फीयर का. तो इसका एलिमेंट जो है ds, इस पर नॉर्मल ड्रॉ लेंगे, तो एरिया वेक्टर जो होगा वह जो है इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन है या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में. तो इंटीग्रल ओवर E डॉट ds, E इंटू ds, इंटीग्रल ओवर E डॉट ds वेक्टर is equal to integral over E ds into cos 0. यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ds वेक्टर, एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, थीटा इज टेकन 0. इंटीग्रल E is taken out from the integral because E is constant at every point of the Gaussian surface. अभी हमने डिफिनेशन इसका बोला गॉसियन सरफेस का, कि गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है. और गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस. ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है व्हाट इज डिफाइंड गॉसियन सरफेस, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में. E is constant, so it is taken out from the integration because any constant is taken out from the integration. E is constant. Now it's equal to E, and this will equal to Q1 upon the charge enclosed. यहीं पर आप अप्लाई कर देते हैं गॉसेस थ्योरम का. ये तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया. और गॉसेस थ्योरम होता है क्लोज सरफेस जो चार्ज इंक्लोज करेगा, ये सरफेस एस हो गया गॉसियन सरफेस, चार्ज इंक्लोज करेगा, उसके अंदर जो चार्ज है इंक्लोज किया Q1 है, और उसका 1/ε0 टाइम्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो Q1 upon ε0 here गॉस थ्योरम इज यूज्ड एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. दोनों को कंबाइन कर दिया फॉर्मूला को, और फ्लक्स के गॉसेस थ्योरम का भी यूज कर दिया. ये हो गया E इंटू इंटीग्रल ds इज entire total surface area of the sphere is 4 pi r square. So E into or 4 pi r square is equal to Q1 upon epsilon naught
therefore E is equal to, where integral ds total surface area of the sphere, Gaussian surface, is equal to 4 pi r square. You know area of a sphere is 4 pi r square. So E into E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught q1 upon r square. This is the electric field intensity at, this is the electric field intensity at point P. Electric field intensity at point P. Electric field intensity at point P. Electric field intensity, or simply it is called electric field at point P. Now you know that if a charge Q is placed inside the electric field E, the force experienced by that charge is charge multiplied by electric field. पहले भी हम बता चुके हैं कि कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो जितना चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है वह टेस्ट चार्ज के रूप में है Q2, और पॉइंट चार्ज यहाँ और सोर्स चार्ज Q1 है, तो टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q2 इंटू E हो जाएगा. फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज Q2 इज, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज होता है, F अपॉन Q, तो F इज इक्वल टू Q अपॉन Q इंटू E. यहाँ पर टेस्ट चार्ज Q2 है P पॉइंट पर, यह फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा F1 के द्वारा वह फोर्स F है, जिसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है. सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज Q2 इज, therefore the force, the electric force experienced by this will Coulomb's law, electric force experienced by the test charge, that is charge Q2 is test charge, चार्ज Q2 टेस्ट चार्ज है जो कि 0.4 से 8 डिस्टेंस पर है. टेस्ट चार्ज Q2 is magnitude of force is F is equal to Q2 multiplied by E. E आपको निकाल आ गया है इक्वेशन 1 में, 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 by R स्क्वायर. यहाँ पर U का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ऐसे 1 से Q2 multiplied by 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 upon R square, and that will equal to 1 by 4 pi epsilon 0 multiplied by Q1 Q2 upon R square. This is equation 2, and which is also Coulomb's law. This is Coulomb's law. This is Coulomb's law. बगल में लिख देते हैं, this is Coulomb's law. That is Coulomb. That is this class. और हम नेक्स्ट क्लास में इसका 3-4 एप्लीकेशन है गॉसेस थ्योरम का, वो करेंगे तो ये चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा. उसके बाद कुछ प्रॉब्लम है तो 2 पार्ट और इसमें हम करेंगे तो ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा विद प्रॉब्लम, और उसके बाद सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे.